Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Students of class 5, I welcome you all. Today we are going to study English, lesson number 6. Let us start the chapter, and the name of the chapter is the Dashera Festival. This is given on page number 41. So students, you also open your book from page number 41. You can see that this chapter is about Dashera. Which festival do you celebrate? हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? We celebrate many festivals, right? We celebrate Holi, Deepavali, Eid, Mahavir Jayanti, then Guru Purab, Christmas, Holi, and so many more festivals. So we celebrate many festivals. Which festival is celebrated as a victory of good over evil? So, students, do you know which festival do we celebrate as a victory of good over evil? माने कि हम ऐसा कौन सा त्योहार है जो अच्छाई का प्रतीक है और बुराई पर विजय का प्रतीक है? ऐसा कौन सा त्योहार है? On which festival do we burn effigies or putlas? तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें हम पुतला बना करके यानी कि एक स्टैचू बना करके उसको बर्न करते हैं? सो आंसर इज yes, it is Dashera festival. Dashera is the festival that we celebrate as a victory of good over evil. And it is the festival in which we burn Putla or a statue of Ravan, Meghnath and Kumbhakarna. आप सबने तो देखा ही होगा in Ramlila. Dear students, let's read why we celebrate Dashera. What is the story behind it? और इसके पीछे क्या story है? Dear students, now let's read why we celebrate Dashera. हम दशहरा क्यों मनाते हैं? What is the story behind it? इसके पीछे क्या कहानी है? इस त्योहार के पीछे क्या कहानी है? So there is a word behind. Remember this. This is a preposition word. In India, many festivals are celebrated with great zeal. हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं with great zeal. Great zeal माने उमंग के साथ, with great enthusiasm, है ना? हम enthusiasm के साथ में, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ बहुत सारे त्योहार भारत में मनाते हैं. In India, many festivals are celebrated with great zeal. दशहरा is one of them. दशहरा भी हम उसी प्रकार से zeal के साथ में मनाते हैं. It is also called विजयदशमी. दशहरा is also called विजयदशमी. दशहरा का दूसरा नाम क्या है? विजयदशमी. According to Hindu calendar, दशहरा occurs on the 10th day of Ashwin month. दशहरा कब आता है? On 10th day of अश्विन मंथ. अश्विन माह के हिंदू कैलेंडर्स होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, ये क्या है? इंग्लिश कैलेंडर है. अगर हम हिंदू कैलेंडर में देखें तो सावन, भाद्रपक्ष, अश्विन ऐसे महीने होते हैं. तो दशहरा कौन से महीने में आता है? इट कम्स ऑन द 10th day ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्षा. ओके, शुक्ल पक्ष मीन्स फुल मून के समय, जब फुल मून होने वाला होता है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा गॉट विक्ट्री ओवर रावण, द किंग ऑफ लंका. तो दशहरा के दिन लॉर्ड राम, श्री राम, गॉट विक्ट्री ओवर रावण. उन्होंने किससे युद्ध किया था? यस, रावण से युद्ध किया था और उसमें उनकी जीत हुई थी. तो देयर इज अ वर्ड मीनिंग विक्ट्री. इट विक्ट्री. An occasion
when you win a war, game, competition और election. जब हम जीतते हैं कोई चीज़ तो उसको क्या कहते हैं? Victory. So on this day, Lord Rama got victory over Ravan, the king of Lanka. He kidnapped Ram's wife Sita and took her to Lanka. Because Lord Rama fought with Ravan because he kidnapped Ram's wife. उन्होंने उनकी पत्नी का यानी कि सीता जी का अपहरण किया था. किसने? लॉर्ड राम की वाइफ का अपहरण किसने किया था? यस, द किंग ऑफ लंका, रावण. रावण किडनैप्ड राम्स वाइफ एंड टुक हर टू लंका. उनका हरण करके, उनको किडनैप करके, फोर्सफुली किसी को लेकर के जाना, उसको क्या कहते हैं? किडनैपिंग. उनको लंका में ले गया था. दिस लेड टू अ फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण which ended with the defeat of Ravan and his army. Due to this reason only, इसी वजह से राम एंड रावण के बीच में फियर्स बैटल हुआ, यानी कि बहुत भयंकर डरावना युद्ध हुआ, which ended with the defeat of Ravan. So there are two words, victory and the opposite of victory is defeat. Defeat माने हारना और विक्ट्री माने जीतना. देन इस युद्ध में क्या हुआ? इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा? डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी. रावण की सेना और रावण इसमें युद्ध में हार गया. he was defeated. Dussehra is celebrated in honor of Ram's victory. So thus we can say that we celebrate Dussehra in honor of Ram's victory. Honor means in respect of, in admiration of anyone. Okay, so हम किसके ऑनर में इस त्यौहार को मनाते हैं? लॉर्ड राम की जीत की खुशी में. So let us continue the chapter. In many parts of India, Ram Leela is organized during Navratris. During Dussehra, Ram Leela is also organized in many parts of India. है ना? नवरात्रि में हम क्या मनाते हैं? साथ में रामलीला के आयोजन भी किया जाता है. In many parts of India, Ramlila is organized during Navratri from Ashwin Shukla Pratipada to Dashmi. So we know that Navratri is the 9-day festival. Navratri, Navratri, to 9 days to 10th day, that is Dashmi. Ramlila describes the story of Ram in the form of drama. What is Ramlila? Yes, it is the form of drama which describes the story of Lord Rama. भगवान राम के जीवन चरित्र को नाटक के द्वारा स्टेज पे जब प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? यस, रामलीला. ये बैक क्वेश्चन भी है आपका, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है. ये देखिए, एवरी डे मेनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, सीता विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध are enacted on the stage. So which scenes do we enact on the stage during Ramlila? रामलीला में कौन कौन से सीन्स दिखाए जाते हैं राम जी के? सो लर्न दीज सीन्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. जीवन की शुरुआत से आप इसको करेंगे. नारद मोह करेंगे, राम जन्म, फिर क्या हुआ? राम जी का विवाह हुआ, फिर उनको वनवास हुआ, फिर वहाँ पे उन्होंने ताड़का का वध किया, देन वो पंचवटी आश्रम बनाया उन्होंने, है ना. देन सीता जी को हरण हुआ बाय डेमन रावण, हनुमान जी से मिलन हुआ, फिर हनुमान जी ने लंका को जलाया, राइट. फिर सेतु निर्माण किया, ब्रिज बनाया फ्रॉम लंका
to Rameshwaram, right? From Rameshwaram to Lanka. And राम रावण युद्ध, राम जी का रावण का युद्ध, ये सब किस में दिखाया जाता है? रामलीला में. हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन, स्पेशली द चिल्ड्रन. और हनुमान जी का गेटअप सबको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बच्चों को, है ना? तो बच्चे किस में अपने आप को, वेशभूषा किसकी पहनना पसंद करते हैं? हनुमान जी की. अच्छा, एक बात बताइए, आपको किसका रोल प्ले करना, किसका गेटअप अच्छा लगता है बनाना, अगर आपको रामलीला में पार्टिसिपेट करना है? सो विच गेटअप डू यू लाइक मोस्ट? रावण, आपको रावण बनना अच्छा लगेगा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, राम, लक्ष्मण, सीता या हनुमान? सो बच्चों को तरह तरह के फेसेस अच्छे लगते हैं. Let us continue the chapter that how do we celebrate Dashera. Let us read this. On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnath and his brother Kumbhkarn are erected on big ground. तो 10वें दिन क्या करते हैं? नवरात्रि के बाद में 10th डे भी आता है. तो 10वें दिन क्या होता है? लार्ज एफिजीज, एफिजीज मीन्स स्टैचूज ऑफ रावण, रावण का बहुत बड़ा पुतला और उसका बेटा मेघनाथ, हिज सन मेघनाथ, और रावण का ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड. उनको खड़ा किया जाता है, उनको बिल्ड किया जाता है एक बिग ग्राउंड में. दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स. और उन स्टैचूज के अंदर, उन एफिजीज के अंदर क्या फिल किया जाता है, क्या स्टफ किया जाता है? लॉट्स ऑफ फायर क्रैकर्स. In the evening, people begin to assemble to see Ravan Dahan and fireworkers. In order to remember Lord Rama, people assemble to see Ravan Dahan. तो रावण का दहन देखते हैं लोग और उस दिन को याद करते हुए इकट्ठा भी होते हैं. Fairs are organized at various places on this auspicious occasion. इस दिन जगह जगह पर, वेरियस प्लेसेस पर, विभिन्न स्थानों पर फेयर्स भी यानी मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. बड़े बड़े मेले भी लगते हैं क्योंकि एक ऐसा दिन है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, शुभ दिन है. चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज. दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क. तो इस दिन बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं दोनों तीनों का रूप मुखौटा लगा करके, राम जी का, हनुमान जी का और राक्षसों का मुखौटा लगाते हैं. मास्क मतलब फेस को कवर करते हैं. एंड आर्म्स यानी तलवार, अस्त्र शस्त्र भी झूठ मूठ के हैंडमेड पेपर के, उससे वो रोल प्ले करते हैं. At sunset, Ram and Lakshman comes in a chariot with Vanar Sena. और सनसेट के समय, in the late evening, before sunsets, Ram and Lakshman come in a chariot. Chariot means rath, an open vehicle which is dragged by horses, है ना, जिसके 2 wheels होते हैं. और उसको रथ के ऊपर बैठ करके वानर सेना के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं. और वो राम शूट्स अरोज एट द एफिजीज. राम, लॉर्ड राम अपने बाणों से पुतले को शूट करते हैं. द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज. और एफिजीज में आग लग जाती है, उन रावण के और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में फायर हो जाती है और वो वहीं पर ही भस्म हो जाते हैं. दे बर्न टू एशेज. एशेज मीन्स वॉट इज लेफ्ट आफ्टर बर्निंग. जलने के बाद में जो राख बचती है, बस उनकी मिट्टी में वो खाक हो जाते हैं. फायर वर्कर्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोडेड इन द एयर. और हवा में बहुत सारे, वायु में क्रैकर्स की आवाज़, ध्वनि सुनाई देती है और उनका एक्सप्लोजन किया जाता है. पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर. एंड इन राजस्थान पीपल गिव्स ग्रीटिंग्स टू ईच अदर. लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दशहरा की देते हैं. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil. So Dashera is celebrated in honor of Lord Ram because it is a symbol of victory of good. अच्छाई की जीत का वो प्रतीक है.
किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक कौन सा त्योहार है? यस, दशहरा। सो वी विल ऑल्सो टेक अ प्लेज दैट वी विल follow good and give up evil. This chapter is completed. Students, let me tell you one more thing. Recently, I have also attended Dashera last year, and it was very special in terms of this fire. How it was special, let me tell you. कि वो किस प्रकार से स्पेशल था। उसमें क्या किया था उन्होंने? राम जी से अरु छुड़वाया और उसको आग भी लगाई, बट देर वॉज नॉट एनी फायर क्रैकर्स। उसमें फायर क्रैकर्स नहीं थे, लेकिन सामने डीजे था, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था बहुत लाउड, जिसमें पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सो इट वॉज इको फ्रेंडली रावण दहन। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। रावण को उन्होंने जलाया तो था, लेकिन उसमें पटाखे नहीं थे, पटाखों का सिर्फ साउंड उन्होंने चला दिया था। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। टुमारो वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज। You read chapter 2 times. Write down the difficult words in your copy. Tomorrow we will discuss back exercise. Till then, take care, stay safe. Thank you.